और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। कांग्रेस के नेता निकले हैं। सोनिया गांधी यहां पर मौजूद हैं, प्रियंका गांधी साथ में है, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे दिल्ली हिंसा को लेकर के। आपको बता दें कल ही CWC की बैठक हुई थी जिसमें सोनिया गांधी और तमाम नेताओं ने बैठक करने के बाद निंदा प्रस्ताव पारित किया था। यहां पर मनमोहन सिंह को आप देख सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। कुमारी शैलजा उनके साथ मौजूद है, सोनिया गांधी के साथ। और निंदा प्रस्ताव कल ही पारित किया गया था। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने कल कहा था कि दिल्ली हिंसा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जो है वो नाकाम रहा है संभालने में इस हिंसा को। ऐसे में अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसके बाद राजनीति और गर्मा गई। कांग्रेस पर एक तरह से सवालिया निशान लगाते हुए बीजेपी ने यह कहा था कि कांग्रेस की ये आदत हो गई है, जब भी इस तरह के संकट की घड़ी आती है तो कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती है और यही काम है कांग्रेस का। इस बीच कल ही ये मार्च होना था राष्ट्रपति भवन तक, लेकिन राष्ट्रपति कल मौजूद नहीं थे दिल्ली में। इसकी वजह से ये मार्च कल टाल दिया गया था। लेकिन आज यहां पर आप देख सकते हैं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कुमारी शैलजा, तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और राष्ट्रपति से अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति से इन्होंने मुलाकात की और यहां पर एक ज्ञापन सौंपा है दिल्ली हिंसा को लेकर। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दिल्ली हिंसा को लेकर एक ज्ञापन कांग्रेस की तरफ से सौंपा गया है। सोनिया गांधी ने कल अपनी बैठक में, मीटिंग के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि अरविंद केजरीवाल भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो से काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। इस बीच हो सकता है सोनिया गांधी कुछ मीडिया से कहें, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि कल से ही ये पहले से तय था मार्च, जो कि आज कल के लिए कल टाल दिया गया था और आज तमाम कांग्रेस के नेता यहां पहुंचे। As you all know, we held a Congress Working Committee yesterday where we discussed several issues with reference to the grave situation which we have witnessed in the last few days in East Delhi. We decided that we should call on the President and hand over our demands. He very kindly agreed to meet us today, and I shall read out a few portions of our memorandum, and I shall start. You must undoubtedly be aware of the unprecedented violence, arson, looting, stone pelting, and brutal murders taking place in the national capital over the last 4 days. Delhi, specifically parts of northeast Delhi, have been gripped by a wave of violence that has only grown in intensity with each passing day. Instead of taking active steps to remedy or diffuse the situation, the central government has also, the newly elected Delhi government, have remained mute spectators as completely mindless rage, designed violence, and organized looting of property has continued unabated. Due to the complete inaction on the part of the Home Minister and the central government, the violence has claimed the lives of at least 34 people, and over 200 have been injured at last count. Several crores worth of properties and business have fallen prey to unchecked arson and looting. Rashtrapati Ji, you are given the highest possible responsibility under the Constitution of India to act as the conscious keeper of this government and to remind it of its constitutional duty and the pillars of Raj Dharma by which any government must abide. We call upon you and the constitutional office you hold that the life, liberty and property of the citizens
is preserved, secured and protected. We also reiterate that you should immediately call for the removal of the Home Minister given the gross ineptitude, abdication of duty and his inability to contain the situation. We owe this to the citizens who have lost their loved ones, their homes, their livelihood, and most of all, their long-cherished amity and brotherhood. We hope you will take decisive action in the matter. सोनिया जी, राष्ट्रपति से क्या भरोसा मिला है? क्या भरोसा मिला है? One second. Dr. Saab, sir, would you like to add something? Why not? We called upon His Excellency the President of India to suggest to him that what has happened in the last 4 days in the national capital of India is a matter of deep concern and is also a matter of national shame. That 34 persons at least have died, over 200 people have been injured, is a reflection on the total failure of the central government to control the situation. And we requested the President to use his power to call upon the central government to protect and preserve its Raj Dharma, and so that the citizens of this country and this national capital are assured of peace, tranquility and justice. मैम, आपको लगता है राष्ट्रपति ने कुछ पॉजिटिव आपको दिया कोई रिस्पॉन्स? आश्वासन मैम, किस तरह का आश्वासन? हाँ, उन्होंने कहा कि we will take cognizance of what we have said in our letter, in our memorandum. The President has kept quiet, Madam, so far, and he has not yet even tweeted an appeal for calm. Well, it's not for me to comment on that. He has assured us that he will look at the issue, and we felt fairly satisfied. मैम, कल आपने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। आज बीजेपी कह रही है कि वो उसको कंडेम करते हैं क्योंकि जांच चल रही है, इस्तीफे की मांग नहीं होनी चाहिए। बोलने दीजिए बीजेपी को, हम भी बोलेंगे, वो भी बात हो रही है। तो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा कांग्रेस ने, और सोनिया गांधी ने बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि आज भी हमने अपने ज्ञापन में इस बात का जिक्र किया है कि केंद्र सरकार एक तरह से पूरी तरह से फेलियर रही है। हिंसा, लूटपाट, पथराव, मर्डर पर सौंपा है ज्ञापन। पिछले 4 दिनों से जो दिल्ली में हो रहा है उसको लेकर सौंपा गया है ये ज्ञापन, और राष्ट्रपति इस पूरे मामले को ध्यान में लें और उसके बाद इस पर जो राजधर्म है वो अपना वो निभाएं, ये कहा मनमोहन सिंह ने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अभी मिला और साथ ही साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा है दिल्ली हिंसा को लेकर। दिल्ली हिंसा पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद उस ज्ञापन में भी सोनिया गांधी ने बाहर निकलकर ये बात कही कि हमने ये कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फेलियर रही है दिल्ली हिंसा को लेकर। ऐसे में राष्ट्रपति पूरे मामले के संज्ञान ले और साथ ही साथ गृह मंत्री को हटाने की एक बार फिर से सिफारिश की है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।